Welcome, students, in the subject Universal Human Values, Unit 4. Today, we are going to focus on the topic recyclability and self regulation in nature. The second will be the conformance in the four orders, and the third, basic activity in the four orders. Okay, let's come with the first topic the recyclability and the self regulation. How this is maintained in the nature itself. There is no one to take care of them. Then, how the nature is self regulating itself. The very well known example which we come across in our childhood classes. Everybody has known and aware of this diagram. What is that? What is this image showing? It is showing about the water cycle that is maintained in our nature. How the water resources like your lake, ocean, rivers, the water from there gets evaporated with a natural source of heat, sun. It gets heated. On heating, the water evaporates, goes high up into the sky, get cool, and again in the form of hail or ice or snow or in the form of rainfall, it again gives the water to the resources. That is a water cycle. Water cycle is maintained itself. There is no one to take care of it. How it will be done? So this is the process I have given you. In this way, these materials get self-regulated on the earth. The water gets regulated. It gives, it evaporates, change its form, and again comes back to the earth. Same case with the breed of plants and animals. They too are self-regulated in the environment. There is nobody to teach them. Plants, they self-nurture their plants. They get destroyed. They give birth or they make another plant, and after some time they get dead or decay. And with the animal also, they maintain the breed. Okay, so in a forest, the growth of trees takes place in a way so that the amount of soil, plants, and animals remains conserved because without soil, the plant cannot survive. Okay, so all these three from where the animal will get food because it can't prepare the food itself. It will get food from the plants, where the plants will get birth, where the plants will get nurtured, obviously in the soil. After decay, after the leaf get decay or the plants get decay, what happens? It again forms, it get mixed in the soil, and the cycle goes on, and all the three are maintained well in the nature. And it never happens that the tree wants to grow, the tree shoot up, and there is a lack of soil for the trees. It never happens. So this appropriateness of conditions that is well suited for the growth of plants and animals are self-regulated in nature. Okay, there is nobody to take care of them. There is no human being, there are no machines to take care of them. They are just maintaining their own population, their own proportions, and that way of maintaining is called self-regulation. In a single breed of animals, if you are talking, take example of the cow, the number of males and females get generated through procreation. They have own process. They give birth to the male or female in animals also, so that their species can continue further. Okay, same case happens with the human, but there are some practices in human that have led to disproportionate number of men and women. What happens? It was the very bad or evil practice earlier, and nowadays also somewhere happens that the female fetus, the female child, when the child is in the form of fetus, a small baby, it is the fetus get killed. She is not allowed to take even the birth also. So obviously there is a mismatch. There is the mismatch in the proportion of men and women. So in the nature, it is self-regulated, it is recycled, regenerated, but it is in improper proportion when we talk about the human. Though human have
a gift of knowledge. But here, when we talk about the self-regulation or the recyclability, the human is in appropriate proportions. Okay, so these two characteristics which we are talking, that is about self-regulation and the cyclic nature, it gives the clue that there is a harmony in nature. If we take away the human, all the three, that is when we are talking about the soil, the plant, and the animal order, these three are well in harmony. Okay, now the next topic we come through, that is the basic activity in the four orders in nature. We are all aware of the four orders. They are the material order, in which the unit comes are soil, water, metal, like this. Pranic order, they are talking about the plants and trees, or the birds, not birds, sorry, plants and trees. In animal order, it covers all the animals and birds. And in human order, we are talking about the human. What are the basic activity on these four orders? In material order, that is recognizing and fulfillment. So what is recognizing? In this, what happens? We take a small example. Just take the example of a gold or an iron. The element of iron, when combined with another element of iron, only then we can say that the element belong to the iron family or a gold family. If one molecule is of iron and other one is uh, of gold or any or silver or any other material, we can't say that it is a particular element. The elements are well recognized, and when they combine, only then they comes to particular material order. Okay, so there is an activity of recognizing. Only if they are same, they will unite to form a big unit. And the next one is fulfillment. We can just take an example. If we are talking about a piece of brick, if it recognize that it is a brick and another brick is also of the same size, made up of the same particles, same elements, what will happen? The brick will combine with one another, and they finally will build a huge building. Okay, एक ईंट जब देखेगा कि दूसरा ईंट भी मेरे जैसा ही है, मेरे ही साइज का है, तब वो मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर देते हैं. तो इट मीन्स जहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ फुलफिलमेंट. और ये फुलफिलमेंट किसी भी चीज का बनना, पूरा होना, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? उनकी रिकॉग्नाइजिंग पे. जब वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दे बोथ आर सेम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लांट ऑर्डर, ट्री ऑर्डर. Again, it has also the same features, same activity that the material order is doing. Is again recognizing. वो भी recognize कर रहा है कि okay, this is the sunlight which I require. This is the water which I require. This is a soil where I have to grow up. है ना? वो भी recognize कर रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट इट इज डूइंग? इट इज प्रिपेयरिंग फूड इटसेल्फ. है ना? वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, अपने आप को नर्चर कर रहा है, और अपने ही जैसा एक दूसरे प्लांट को बनाता है, उसको भी नर्चर करता है, अपने आप की फुलफिलमेंट करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, सर्वाइव करता है, एग्जिस्ट करता है अपने नेचर में. ओके, तो अगेन in the material order and the plant order, they both have the same activity. Now when we are talking about the animal order, इसके अंदर plant order के अलावा जो और चीजें हैं, वो ability क्या क्या है? Assume करने की, recognize करने की, and then fulfillment in I. That is, assume का मतलब क्या हो गया? कि it can just identify कि okay, दिस इज सेम, दिस इज डिफरेंट. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो आप जो एनिमल है वो एज्यूम कर लेता है कि ओके, दिस इज द स्ट्रेंजर टू माय हाउस, और दिस इज द पर्सन बिलोंग टू माय हाउस. अगर वो स्ट्रेंजर है तो वो क्या काम करता है? उसको क्या काम कर रहा है? इट रिकॉग्नाइजेस. उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि अरे ये तो स्ट्रेंजर है,
और फिर उस पर वो बार्किंग शुरू कर देता है एंड कंटिन्यूसली इट बार्क, क्योंकि उसने पहले एज्यूम किया कि ये वो पर्सन नहीं है, आज कोई नया पर्सन मेरे घर के अंदर आ रहा है ना, एज्यूम किया उसको एज ए स्ट्रेंजर, पहचाना, रिकग्नाइज किया और फिर इट स्टार्टेड बार्किंग। और अगर वही पर्सन जो डेली उसको देख रहा है, जो डेली उसके घर पे आता है, वो उसी घर का पार्ट है, इट विल नेवर बार्क। ओके, एंड दिस वे इट गेट फुलफिलमेंट और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इट जस्ट फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी, आई की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखते हैं अभी आई और बॉडी, ये दो चीजों की फुलफिलमेंट कैसे होती है। जब हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल की एक्टिविटी को हम दो चीज में बांटते हैं, फुलफिलमेंट इन आई एंड फुलफिलमेंट इन बॉडी। बॉडी की जरूरतों को वो कैसे पूरा करता है, फुलफिल करता है, और आई की जरूरतों को वो कैसे पूरा कर रहा है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन के अंदर भी वही सारी चीजें हैं जो एनिमल के अंदर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द एडिशनल वन इज कि बिना एज्यूम किए कि अच्छा ये दूसरा है, ये कुछ है, कि ये तो एजम्पशन पे जी रहा है ना, उसने मान लिया कि ये स्ट्रेंजर है या फिर ये मेरे मालिक है, उसने एज्यूम कर लिया उसको। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग? वो एज्यूम बाद में करता है, सबसे पहले वो क्या कोशिश करता है? जानने की, जानना, मानना एंड पहचानना। ओके, क्योंकि खाली एज्यूम करने से चीजें कई बार गलत हो जाती हैं। यही डिफरेंस है एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर में। यहाँ पे जानना, मानना एंड पहचानना। ओके, नोइंग, पहले अच्छे से जान लो, एंड दिस वे इट इज फुलफिलमेंट, इट इज डूइंग द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, तो क्या पूरी इस टेबल को अगर हम एक फटाफट एक रिव्यू डालते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग इन द मटेरियल एंड प्राणिक ऑर्डर? दोनों में सिमिलरिटी आपने देखी, सिर्फ वहां पे क्या हो रहा है? रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट, है ना, अपने जैसे एलिमेंट को ढूंढ रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ओके, इट हैज बोथ हैव द लैक ऑफ एज्यूमिंग एंड नोइंग, ना कोई एज्यूम कर रहा है ना किसी को जान रहा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं मटेरियल ऑर्डर की, दैट हाइड्रोजन नोज, क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है वो? कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ अपने मॉलिक्यूल्स को ऐड करता है, देयर विल बी अ रिलेशनशिप पॉसिबल, और कंबाइन होने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा? पानी, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप करते हैं, इट विल फॉर्म वाटर। ऐसे ही ब्रिक का मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रिक का दूसरे ब्रिक के साथ एक डेफिनेट रिलेशनशिप होगा, इट विल रिकॉग्नाइज, अरेंज होंगे और एक बिल्डिंग को फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लांट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसका रिलेशन क्या है सन और पानी के साथ, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, अपने लिए फूड तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, देयर इज नो सिलेक्शन इन्वॉल्व हियर, उसकी अपनी तरफ से कोई चॉइस नहीं है। अगर देयर इज सन, है ना, सन, सूर्यदेव चमक रहे हैं, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो सन से लाइट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। सन है, द प्लांट हैज नो चॉइस। अगर उसकी जड़ों में पानी आ गया है, तो पेड़ के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, वो होगा ही होगा, वो एक्टिविटीज होंगी ही होंगी। रूम के अंदर एक फैन चल रहा है, अब वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वाइड, जो उसकी मोटर की उसमें बाइंडिंग हुई है। उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है कि उसे क्या चूज करना है। ओके, बट जब हम एनिमल और ह्यूमन की बात करते हैं, तो वहां पे हमने क्या नया एक्टिविटी पाया? दैट इज अबाउट द सिलेक्शन टेकिंग प्लेस। हम चूज कर सकते हैं, हम अपनी चॉइस रख सकते हैं। ओके, तो दैट वाज इन दैट पॉइंट, यही हमें डिफरेंशिएट करता है एनिमल एंड ह्यूमन। ये दोनों जो ऑर्डर्स हैं, ये आपका मटेरियल ऑर्डर एंड द प्राणिक ऑर्डर से डिफरेंट कैसे हैं? दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज इन द 4-1। ओके, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ एक्टिविटी इज इन ह्यूमन ऑर्डर इज डिफरेंट विद दैट ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑर्डर। ह्यूमन का जो वर्क करने का तरीका है, ह्यूमन का जो रिकग्नाइज करने का तरीका है, उसके जो बिहेवियर्स हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, वो उन सब से कैसे अलग करती हैं?
बाकी ऑर्डर से। तो क्या चीजें हैं वो जो डिफरेंशिएट कर रहा है? ओके, तो एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी? एक्टिविटी हो रही है, कुछ काम चल रहा है, हमें कैसे पता चलता है? जब कोई भी चीज हिलती डुलती है, कोई मोशन उनके बीच में चल रहा है, या फाइनली कोई रिजल्ट हमारे सामने आता है, तो हमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है। नहीं तो हमें लगता है कि यार इसमें तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अगर एक कुर्सी रखी हुई है आपके रूम पे, तो यू विल फील यार कुछ भी एक्टिविटी इसमें तो हो ही नहीं रही है, कि वो तो ऐसी ऐसे रखी है बस। ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें कोई मोशन है नहीं, कोई आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है। बट तो इट इज नॉट इन द मोशन, स्टिल देयर इज एन एक्टिविटी। अब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो देयर इज नो मोशन, स्टिल द एक्टिविटी इज हैपनिंग एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। हर वक्त हम एक्टिव हैं, हर वक्त एक्टिविटी कुछ ना कुछ चल ही रही है। okay? तो मटेरियल ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो एक्टिविटी कॉमन थी प्लांट्स के अंदर भी और मटेरियल के अंदर भी, है ना? तो वो बातें करते हैं कि किस तरह से एक्टिविटीज इन चारों में अलग अलग हो रही हैं, और कैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ एक्टिविटी हो भी रही, नहीं हो रही है, हो रही है, तो फिर उनका क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि वी आर सिटिंग इन अ रूम, हम बैठे हुए हैं, और हम मान के चल रहे हैं काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि हम बैठे हैं सिर्फ। बट स्टिल देयर आर सम एक्टिविटीज। बैठे होने के बाद भी हमारे अंदर एक्टिविटी चल रही है। क्या चल रही है वो? कि हम बैठे के होने के बाद भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चल रही है, कुछ इच्छाएं हो रही है, डिजायर, काश हम यहाँ जा पाते, ये घूम पाते, वट, है कि नहीं? द बॉडी, इट इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। कंटिन्यूअसली हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा हार्ट बीटिंग, हार्ट थ्रॉबिंग चल रहा है। तो हो क्या रहा है? भले ही हम बैठे हुए हैं, स्टिल ये एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, अब रूम के अंदर हमें कहीं हवा तो दिखती नहीं है, बट स्टिल द एयर इज ब्लोइंग इन द रूम। दीवारें सामने हैं, खड़ी हैं, हमें लग रहा है कि यार इनमें तो कुछ मोशन ही नहीं है, बट स्टिल इट हैज द एक्टिविटी। तभी तो हम कहते हैं कुछ टाइम के बाद, अरे इसका तो पेंट ही उतर गया, दीवारें पुरानी हो गई, वो तो कहीं गई नहीं है। तो दो दे आर ओनली इन द स्टैंडिंग पोर्शन, देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो मोशन, हम ये कह रहे हैं। बट ये सब ना होने के बाद भी देयर इज कॉन्स्टेंटली देयर इज फेसिंग द एक्टिविटी। रूम के अंदर एक चेयर रखी हुई है, इट कैन बी विजिबल टू आईज, हम उसको देख रहे हैं कि हाँ कुर्सी रखी हुई है, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें भी कुछ एक्टिविटी चल रही है, वो भी एक्टिव है। द चेयर इज स्टिल एक्टिव, भले ही वो ऐसी पड़ी है। अब कैसे समझेंगे कि वो चेयर भी एक्टिविटी कर रही है? कैसे हम जस्टिफाई करेंगे इस बात को कि इनमें एक्टिविटी हो रही है? आगे देखते हैं। अब हमने बात की कि कोई चीज मूव कर रही है ना, नेकेड आई से हम देख रहे हैं कि देयर इज अ मोशन। एक बस मूव कर रही है, एक आदमी दौड़ रहा है, एक लट्टू आप घुमा रहे हैं, ऑल द थिंग। कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि ये स्टेशनरी हैं, नहीं घूम रही है, नहीं मूव कर रही है, लेकिन फिर भी एक्टिव है। तो इसी चेयर की एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कोई एक्टिव नहीं है, बट व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली दैट जो ये चेयर वुड की बनी हुई है, ये कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ। उसमें जो हवा, जो नमी, जो डस्ट, जो कुछ भी है, वो सब के सब इंटरेक्ट करते हैं उस लकड़ी की कुर्सी पर। और तभी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जो लकड़ी की जो चेयर हमारे रूम में रखी हुई थी, जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कुछ टाइम के बाद वो धीरे 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 डिके होना शुरू हो गया है। तो व्हाई इट इज डिकेइंग इफ इट इज देयर इज नो एक्टिविटी? वो तो कहीं नहीं मूव कर रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट इट डिकेस। तो डिके क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज of the activity, that is the direct interaction with the environment. Okay, so we can say all unit around us, जिसमें हम भी आते हैं, हम हर वक्त क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं।
वी आर कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता ही रहता है। So there is a state or configuration and motion simultaneously. अब चाहे वो विजिबल हो रही है हमारी नेकेड आई से या नहीं हो रही है, बट समथिंग इज हैपनिंग, दिस रिमेन्स ऑल द टाइम। हम कभी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि अब हो रहा है अब नहीं हो रहा है। दिमाग पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही हैं, हार्ट बीट्स चल रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर चल ही रहा है, सब चीजें चल रही हैं। ओके, तो लुक एट दिस टेबल। तो जितनी बातें हम अभी कर रहे हैं, दिस ऑल आर हियर, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। प्लांट्स के अंदर और क्या एक्टिविटी हो रही है कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक जैसे पार्टिकल्स कंबाइन होके एक कंप्लीट मटेरियल को फॉर्म करती हैं, है ना। गोल्ड के पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल्स, सारे के सारे आयरन के पार्टिकल छोटे 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 जब कंबाइन होते हैं एक बड़ा एक मटेरियल तैयार हो जाता है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कुछ एक्टिविटी होने की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन। तो बनना और बिगड़ना, किसी और फॉर्म में जाना, डिकम्पोज होके कोई दूसरा रूप ले लेना, दूसरा फॉर्म ले लेना, ये मेटीरियल ऑर्डर में चलता ही रहता है। ओके, रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, कंपोज होता है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वापस मिट्टी में मिल जाता है, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। देन वी टॉक अबाउट द प्राणिक ऑर्डर। उसमें भी ये चीज हो रही है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को फॉर्म कर रहा है, उसको नर्चर करता है, एंड टाइम टू टाइम एक समय के बाद क्या होना शुरू होता है, द प्लांट ऑल्सो गेट डिके, एक एज के साथ वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और वापस सॉइल में मिल जाता है। So when with addition to these two, composition and the decomposition, the other activity is the respiration. Respiration की जो एक्टिविटी होती है प्लांट्स के अंदर वो एक एडिशनल है कंपैरिजन टू योर मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, इन सबकी प्रेजेंस में वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है एंड दिस रिस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, अब बात हम कर रहे हैं एनिमल ऑर्डर की, जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। में क्या चीजें आ रही है एडिशनल, ये तीन चीजें सिमिलर हैं जो एक प्राणिक ऑर्डर के साथ हो रही है, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड रिस्पायरेशन। वो भी एक बर्थ लेता है, एक काउ का बेबी काउ की तरह ही है ना, कंपोज हो रहा है, देन आफ्टर सम टाइम, एक टाइम के साथ साथ कुछ रिएक्शंस के साथ साथ वो फिर एज ओल्ड के साथ वो भी डिकम्पोज हो जाता है, डेड हो जाता है, और उसके अंदर भी ये प्रोसेस चल रही है रिस्पायरेशन, है ना। ये एक्टिविटी कहाँ चल रही है, बॉडी के अंदर। प्लस सिलेक्शन इन आई, यहाँ पर वो क्या काम कर सकता है एडिशनल, इट कैन डू द सिलेक्शन। वो सेलेक्ट कर सकता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना है ना। उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जिसमें वो चीजों को सेलेक्ट कर सकता है। ओके, बट इट कांट मेक इट, वो उसको बना तो नहीं सकता है, बट हाँ जो बनी हुई चीजें हैं उनमें से वो चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक द प्लांट्स, ये अपने अकॉर्डिंग जो ये फूड बनाता है प्लांट ऑर्डर, ये अपने लिए फूड तो नहीं तैयार कर सकता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है बहुत सारे फूड की, तो उसमें से कोई भी वो चूज करके खा सकता है। बट अलग से वो बनाए, उसका मन करता है कि नहीं आज मुझे ये खाना है, तो इट कांट डू दैट थिंग, है ना। वो जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस वो नहीं लगा सकता। हाँ सिलेक्शन वो जरूर कर सकता है, ठीक है, ओनली इट कैन सेलेक्ट, बाकी और कुछ नहीं। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर की, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, सेम एज द एनिमल, लाइक द कंपोजिशन, एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ हो रहा है, एंड आफ्टर सेल टिश्यूज ये सब आगे बढ़ रही है, एंड आफ्टर सम टाइम with the age there is again a decomposition of the body, there is a process of respiration in the body। उसके अलावा ये जो सिलेक्शन है एनिमल के अंदर यहाँ भी है, सिलेक्शन ये भी कर सकता है, इसके पास भी चॉइस है, बट it has these two things additional here, thought and desire। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इच्छा
विचार, है ना, आशा। इच्छा, विचार, आशा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये तीनों चीजें किसके अंदर है? ह्यूमन बीइंग के। ओके, तो ये जो टेबल है कंप्लीट, इट गिव्स अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज, जिसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही चीजें यहाँ पे हमने वन बाय वन एक्सप्लोर की हुई है। ओके, ये सारी चीजें, वुडन चेयर का हमने एग्जाम्पल लिया, कैसे वो बन रही हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ वुड से बन रही हैं। आफ्टर सम टाइम फिर वो ब्रेक हो जाती हैं, कंपोजिशन हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। Thus, any unit in the material order can be understood as an activity of composition and decomposition. ये जो टेबल है, इसी टेबल को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। प्लांट ऑर्डर में वही चीजें हैं, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड द रिस्पिरेशन। ओके, तो रिस्पिरेशन में क्या क्या चीजें हो रही है? दे आर ब्रीदिंग और पल्सेटिंग। ये तो एडिशनल हो रहा है जो मेटेरियल ऑर्डर में हो रहा था। एनिमल ऑर्डर के बारे में हमने बात की, तो जो एक्टिविटी होती है एनिमल के अंदर, उसको दो एस्पेक्ट्स हमने बांटे हैं, एक्टिविटी इन बॉडी एंड आई। बॉडी के अंदर कौन सी एक्टिविटी है? फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज, है ना, जो हमने प्लांट्स के अंदर भी देखी हैं। उसके अंदर रिस्पायरेशन हो रहा है, जो वो जिसको हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग हो रही है ना, डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। ऑल दिस थिंग्स, छोटे छोटे सेल्स बिल्ड हो रहे हैं, एक बॉडी कंपोज हो रही है। कुछ टाइम के बाद यही सेल ब्रेक हो रहे हैं, तो बॉडी डिकम्पोज हो रही है। तो ये बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। तो जब हम बॉडी के अलावा जब हम बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, आई इन एनिमल, तो एनिमल के अंदर जो स्वयं की चीजें थी, जो आई से रिलेटेड थी, वो क्या थी? कॉन्शियस एक्टिविटीज, है ना। तो ये जो कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, ये बिल्कुल बॉडी की एक्टिविटी से अलग है। क्या थी वो? आई के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है एनिमल के अंदर, इट इज ऑफ एज्यूमिंग, एज्यूम करने की जो एबिलिटी है एनिमल के अंदर। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको डॉग का, है ना। ह्यूमन बीइंग है, स्ट्रेंजर भी ह्यूमन बीइंग है, और उसका ओनर भी ह्यूमन बीइंग है, बट इट इज एज्यूमिंग इट डिफरेंटली। ओके, जो कभी कभी आ रहा है, जिसको उसने नहीं देखा, उसको उसने स्ट्रेंजर मान लिया। जिसको वो रोज देखता है, जो उसको उससे बातें कर रहा है, जो उसको कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है, उसको मानता है कि हाँ, इट इज नोन टू हिम। उसने एज्यूम किया और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी करता है। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस कॉन्शियसनेस, और यू कैन से द एबिलिटी और फैकल्टी ऑफ एज्यूमिंग इज नॉट इन बॉडी। ये जो एज्यूमिंग करने की जो एबिलिटी है, ये बॉडी के अंदर नहीं है। ये कहाँ हो रहा है? उसके थॉट प्रोसेस में, आई के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है? सेम एज द एनिमल ऑर्डर। कौन कौन सी? कंपोजिशन, decomposition and respiration. When it comes to consciousness और I, उसके अंदर और एबिलिटी आती है कंपैरिजन टू सिलेक्शन, क्योंकि एनिमल के अंदर तो वो था ना सिलेक्शन करने वाली एबिलिटी, वो अपनी बॉडी को नर्चर करने के लिए कुछ भी सिलेक्शन कर सकता है। Thus, in human being, I has the activity of desiring, thinking and selecting, or you can say tasting, with a possibility or need for understanding and realization. ये जो एक्टिविटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इच्छा, विचार, आशा और सेलेक्टिंग, टेस्टिंग, इस केस में क्या हो रहा है कि ठीक है, आज उसको बहुत स्पाइसी खाने का मन है। ओके, उसके पास डिजायर आई कि भाई मुझे बहुत अच्छा सा कुछ खाना है, बट ही इज इल, बीमार है वो। तो इन दिस केस अब डिजायर तो आ चुकी है टेस्टी खाना खाने की, बट ड्यू टू द गिफ्ट ऑफ थिंकिंग, जो सोचने की क्षमता उसके अंदर है, वो उसको क्या करता है? रोकता है कि ठीक है, तुम्हारे अंदर ये डिजायर तो आ चुकी है, बट यू डोंट गो फॉर द टेस्ट। इस वक्त जो मुझे सेलेक्ट करना है, वो कौन सा सेलेक्ट करना है? द थिंग विच इज हेल्पफुल फॉर माई बॉडी। उसको ये समझ में आ गया है, उसने ये समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। उसने रियलाइज किया कि इफ आई एम नॉट वेल, मेरी बॉडी के लिए इस वक्त टेस्टी खाना ज़्यादा अच्छा है, या फिर मैं ऐसा खाना खाऊं जो इस वक्त इजीली मुझे डाइजेस्ट कर दे।
मेरे मतलब मेरे फूड को डाइजेस्ट कर दे और मुझे एनर्जी दे। ओके, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारी चीजें किससे आई हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्ञान अवस्था, दैट इज द नॉलेज ऑर्डर। ओके, so that's all for today's lecture, and we have covered the very big, very important three topics. They are very, very important in the point of the examination. So that's all for today. We'll meet in the next lectures. Okay, then. Thank you.